हाँ, हरे कृष्णा। सो हरे कल कृष्ण। आप लोग वो 10th चैप्टर, सॉरी, कौन सा चैप्टर है ये? नाइन्थ सर। हाँ, 9th चैप्टर आप लोग रीडिंग किए थे क्या? जी। वो यशोदा बाइंस, मदर यशोदा बाइंस लॉर्ड कृष्णा हमने कंप्लीट किया। ओके, ठीक है। हम लोग आज फिर से ये चैप्टर पढ़ते हैं, फिर से इसे और अच्छे से इसे डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और फिर हम लोग कल 10th चैप्टर पे जी। एंटर करेंगे। तो मदर यशोदा बाइंड्स लॉर्ड श्री कृष्ण। मैं स्टार्ट करता हूँ इसको रीडिंग करना, ठीक है ना? आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जहाँ पे समझ ना आए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। वंस अपॉन प्रभु इट। जी, स्क्रीन आपका शेयर नहीं हो रहा है क्या? ओह अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं किया ना। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। 1 सेकेंड। चैप्टर 9, इज इट विजिबल? आप लोग को दिख रहा नहीं, है? अभी तक तो नहीं। अभी 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 शायद, हाँ अभी दिख रहा दिख रहा है ना? है जी। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. Once upon a time, seeing that her maid servant was engaged in different household duties, Mother Yashoda personally took charge of churning butter, and while she churned butter, she sang the childhood pastimes of Krishna and enjoyed thinking of her son. The end of her sari was tightly wrapped while she churned, and so account of her intense love for her son, milk automatically dripped from her breasts, which moved as she labored very hard. Churning with two hands, the bangles and bracelets on her hand tinkled as they touched each other, and her earrings and breast shook. There were drops of perspiration on her face, and the flower garland which was on her head scattered here and there. Before this picturesque rite, Lord Krishna appeared as a child. He felt hungry, and to increase his mother's love, he wanted her to stop churning. He indicated that her first business was to let him suck her breast, and then she could churn butter later. तो यहाँ तक क्लियर है ना सबको? हरे कृष्णा. Yes, sir. Okay. Mother Yashoda took her son on her lap and pushed the nipple of her breast into his mouth, and while Krishna was sucking the milk, she was smiling, enjoying the beauty of her child's face. Suddenly, the milk which was on the stove began to boil over. Just to stop the milk from spilling, Mother Yashoda at once put Krishna aside and went to the stove. Left in that state by his mother, Krishna became very angry, and his lips and eyes became red in rage. He pressed his teeth and lips, and taking up a piece of stone, he immediately broke the butter pot. He took butter out of it, and with false tears in his eyes, he began to eat the butter in a secluded place. तो बेसिकली कृष्णा इस तरह से शरारतें करते थे, ठीक है ना? कि यहाँ पे दिख रहा है कि फिलहाल वो जो दूध उबलता हुआ जो माता यशोदा को दिखता है, तो वो कृष्णा को एक जगह रख के वो चली जाती है अपने हाउस होल्ड वर्क को, स्टोव को बंद करने के लिए. फिर उसके बाद यहाँ पे कृष्णा गुस्सा हो जाते हैं और एकदम गुस्से में पत्थर उठा के मटका वगैरह फोड़ के उससे बटर खाने लगते हैं. In the meantime, Mother Yashoda returned to the churning place after seeing the overflowing milk pan in order. She saw the broken pot in which the churning yogurt had been kept. Since she could not find her boy, she concluded that the broken pot was his work. She smiled as she thought, the child is very clever. After breaking the pot, he has left this place fearing punishment. After she shouted all over, she found her son sitting on a big wooden grinding mortar, while was kept upside down. He was taking butter from a pot which was hanging from the ceiling on a swing, and he was feeding it to the monkeys. She saw Krishna looking this way and that way in fear of her because he was conscious of his naughty behavior. After seeing her son so engaged, she very silently approached him from behind. Krishna, however, coming saw her coming toward him with a stick in her hand. In her hand, he immediately got down from the grinding mortar and began to flee in the fear. Mother Yashoda chased him to all corners, trying to capture the Supreme Personality of Godhead, who is never approached even by the meditation of great yogis. So, this is the very important line. You can
राइट डाउन इन नोट पैड कि वो भगवान जो बहुत योगी सालों से जो तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके वश में भी नहीं आते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, वो मदर यशोदा उन्हें चेस कर रही है, और वो लास्ट में मदर यशोदा उन्हें पकड़ भी लेती है ना। तो ये बेसिकली ये चीज़ शोकेस करता है कि बेसिकली आउट ऑफ लव कृष्णा इज गोइंग टू बाइंड थ्रू हिज डिवोटीज, है ना, कि कृष्णा इज़ वेरी क्लोज टू द डिवोटीज। अरे बहुत सारे साधु महात्मा होते हैं जो करोड़ों साल तक मेडिटेशन करते हैं, इवन दे कैन अप्रोच उनको गॉड को अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर डिवोटीज के लिए इट इज़ ईजी। In other words, the Supreme Personality of Godhead Krishna, who is never caught by the yogis and speculators, was playing just like a child for such a great devotee as Mother Yashoda. That is a very important line. Mother Yashoda, however, could not easily catch the first running child because of her thin waist and happy body. Still, she tried to follow him as fast as possible. Her hair loosened, and the flowers in her hair fell to the ground. Although she was tired, she somehow reached her naughty child and captured him. तो यहाँ माता यशोदा उसको पकड़ लेती है. When he was caught, Krishna was almost on the point of crying. He smeared his hand over his eyes, which were anointed with black eye cosmetics. The child saw his mother's face while she stood over him, and his eyes became restless from fear. Mother Yashoda could understand that Krishna was unnecessarily afraid, and for his benefit she wanted to allay his fears. Being the topmost well-wisher of her child, Mother Yashoda thought, if the child is too fearful of me, I don't know what will happen to him. तो बेसिकली दैट इज़ अ नेचर कि जब भी बच्चा डर जाता है तो उसके साथ हम लोगों को उसको फॉलो ऑन करना चाहिए, उसको मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए, दैट नॉट इन दैट वे कि हम लोग उसको और डांटे और पनिश करें। तो ऐसा हो सकता है कि वो बदमाश बन जाए या थोड़ा गलत बिहेव करे, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज़ अ वेरी केयरिंग नेचर, ये वात्सल्य भाव है। मदर यशोदा थॉट दैट इज़ अ वात्सल्य भाव। मदर यशोदा देन थ्रू अवे हर स्टिक। In order to punish him, she thought to bind his hands with some ropes. She did not know it, but it was actually impossible for her to bind the Supreme Personality of Godhead. ठीक है ना? Mother Yashoda was thinking that Krishna was very tiny child. She did not know that the child had no limitation. There is no inside or outside of him, nor beginning nor end. He is unlimited and all-pervading. Indeed, he is himself the whole cosmic manifestation. समझ रहे हैं ना? हमें पता चलता है इस कथा से कि माता यशोदा क्या कर रही है, कृष्ण को बांधने की प्रयास कर रही है, कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है। इसी तरह से एक मूर्ख और था जो भगवान को बांधने चला था। कौन था वो? आप लोगों को पता है? दुर्योधन। एग्जैक्टली, दुर्योधन। तो दुर्योधन ऑल्सो वांटेड टू कैप्चर कृष्णा। तो उसने भगवान, बट आउट ऑफ envy, आउट ऑफ false pride, false ego, out of anger. तो बेसिकली ही इज़ नॉट अ डिवोटी। दुर्योधन डिवोटी नहीं था, है ना, और वो उसको कैप्चर करने चला था जो खुद उसमें समाया हुआ था, है ना, बेसिकली। तो इसमें बताया चल रहा है कि भगवान को दुर्योधन वॉज वेरी पावरफुल, नो डाउट, ही इज़ महारथी, है ना, महारथी कहते हैं लोग। तो दुर्योधन वॉज वेरी पावरफुल, बट तुम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, इवन इफ यू हैव लॉट ऑफ पोसेशन, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ फेम, लॉट ऑफ एवरीथिंग इफ यू हैव, बट इफ यू आर नॉट डियर टू कृष्णा, इफ यू आर नॉट डिवोटी, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाइंड कृष्णा। यू कांट बाइंड कृष्णा। डिफ़िकल्ट क्या, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो इससे इस स्टोरी से पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों के बंधन में बंधते हैं, अपने भक्तों के प्रेम में बंधते हैं, ना कि किसी अहंकारी के बंधन में। तो कृष्ण को बांधने का प्रयास दुर्योधन ने भी किया था, पर वो बांध नहीं पाया था, वो खुद माया में फंस गया था वहाँ पे। और यहाँ पर माता यशोदा जब कृष्ण को बांधती है तो वो प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। वो हम लोगों को दिखेगा किस तरह से भगवान अपने भक्तों के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं।
Still, Mother Yashoda was thinking of Krishna as a child. Although he is beyond the reach of all senses, she endeavored to bind him to a wooden grinding mortar. But when she tried to bind him, she found that the rope she was using was too short by 2 inches. तो भगवान करते हैं क्या, कभी कभी डिवोटीज का परीक्षा भी लेते हैं, कभी कभी डिवोटीज के साथ खेलते भी है ना. She gathered more ropes from the house and added to it, but still she found the same shortage. In this way, she connected all the ropes available at home. When the final knot was added, she saw that the rope was still 2 inches too short. माता मुस्कुरा रही है, बट शी वॉज एस्टोनिस्ड. हाउ वॉज इट हैपनिंग, किस तरह से हो रही है. इन अटेम्प्टिंग टू बाइंड हर, सी बिकेम टायर्ड. तो वो थक गई, लास्ट में वो थक गई. भगवान क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं. जब भी कोई भक्त है, जब भी वो भगवान का भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान उनकी बहुत परीक्षा लेंगे. परीक्षा लेने का मेन पर्पस होता है कि भगवान उसको अपने पास और करीब ला सके. इसलिए कहा जाता है, इफ़ यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 1000 स्टेप्स टुवर्ड्स यू. ये प्रमाण है. क्यों प्रमाण है? क्योंकि आप प्रमाण किस तरह से है कि भगवान सबसे पहले आप जैसे भगवान आप अगर प्रे करोगे भगवान से कि भगवान ओ कृष्णा प्लीज़ आई वांट टू सर्व डिवोटीज, आई वांट टू बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, प्लीज़ कृष्णा प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रेयर. इन दैट रिगार्ड अगर आप प्रे करते हो तो फिर क्या होगा, कृष्णा आप लोगों को गुरु और वैष्णव भेजेंगे, गुरु और वैष्णव आपके पास भेजेंगे. अब फिर उसके बाद आप गुरु और वैष्णव के पास जाओगे तो वहाँ पे आप सर्विस करोगे. कभी कभी आप लोग टायर्ड हो जाओगे, कभी कभी थक जाओगे, बट फिर आपको गुरु वैष्णव इंस्पिरेशन करेंगे. फिर आप आगे बढ़ोगे. अल्टीमेटली यू कैन रीच आउट टू कृष्णा. दैट इज़ द प्रोसेस. तो बेसिकली भगवान क्या देखते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो बच्चा है वो कितना प्रैक्टिस कर रहा है, मेरे लिए कितना प्रैक्टिस कर रहा है. तो इन अटेम्प्टिंग टू बाइंड हर सन, शी बिकेम टायर्ड. शी वॉज perspiring and the garland on her head fell down. Then the Lord Krishna appreciated the hard labor of his mother, and being compassionate upon her, he agreed to be bound up by the ropes. This is how Krishna is very merciful, how Krishna is very dear to devotees. This line indicates that Krishna, playing as a human child in the house of Mother Yashoda, was performing his own selected pastimes. Of course, no one can control the Supreme Personality of Godhead. It is a kind of foolishness, even for devotees. One should not think like that. I can bind Krishna. I am the pure devotee of Krishna, so I can bind Krishna easily. This is a very very bad attitude. Devotees should not think like that कि हम कृष्णा को बांध सकते हैं, अपने प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं. If one is very pure devotee, then I can't say anything. But the thing is कि कभी भी किसी भी ऐसे भक्तों को, जैसे हम लोगों को, खासकर हम लोग जो हैं, हम लोगों को कभी इस तरह से क्लेम नहीं करना चाहिए, इस तरह से लोगों के बीच इस तरह का व्यंग प्रस्तुत करना नहीं चाहिए कि हम भगवान को बांध सकते हैं. नो, दैट इज़ अ फॉल्स परसेप्शन, बिकॉज वी आर अंडर द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, एंड दैट इज़ अ फैक्ट कि हम लोग अभी भी माया में हैं. हम लोगों के सेंसेस एजिटेट हो सकते हैं कभी भी. तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू pray to Krishna. We should always try to pray to Srila Prabhupada ki, oh Krishna, oh Prabhupada, please help me so that I can follow your instruction very easily. So in that way we should pray to Prabhupada, we should pray to Acharya, Guru. In that regard we can elevate eventually. So Krishna, playing as a human child in the house of Mother Yashoda, was performing his own selected pastimes. Of course, no one can control the Supreme Personality of Godhead. The pure devotee surrenders himself onto the lotus feet of the Lord, who may either protect or vanquish the devotee. But for his part, the devotees never forget his own position of surrender. तो एक पास टाइम आता है, एक छोटा सा पास टाइम आता है, जब एक बार नारद मुनि भगवान के पास गए, और नारद मुनि इस तरह से बोलते हैं, भगवान को प्रस्तुत करते हैं कि हे भगवान, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है. तो भगवान बोलते हैं कि नारद, आप एक काम करिए, आप मेरे सारे भक्तों के पास जाइए, और सारे भक्तों के पास जाकर उन्हें बोलिए कि नारायण का और कृष्ण का तबीयत खराब है. जो अपना चरण का धूलि दे देगा उसको, जो चरण का धूलि देगा उसको भगवान अपना माथे में जैसे स्पर्श करेंगे भगवान ठीक हो जाएंगे. तो नारद जी बड़ा अचंभित हो गए. उन्होंने भगवान से पूछा, अरे भगवान, आपका चरण का धूलि, मतलब आप किसी और का चरण का धूलि अपने माथा में कैसे लेंगे? कोई भक्त आपको अपना चरण का धूलि नहीं देगा, महापाप है. तो लेकिन फिर भी भगवान का इंस्ट्रक्शन था, तो नारद मुनि चल पड़े. तो बहुत लोगों के पास गए, साधु महात्मा के पास गए, संत के पास गए,
फ्रेंड्स के पास गए, सबके पास भगवान पहुँचे। लास्ट में भगवान पहुँचे कहाँ पे, गोपी लोगों के पास। तो ज्यों ही वो गोपी लोगों के पास पहुँचे, गोपी लोगों को उन्होंने ये प्रस्तुत किया, गोपियों को उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि भगवान ने कहा है, भगवान का तबीयत बहुत ख़राब है, भगवान ने कहा है कोई भी भक्त, कोई भी अगर उन्हें अपना चरण का धूली देगा, उसको माथा में लगा के भगवान ठीक हो सकते हैं। तुरंत जितनी भी गोपियाँ थी वहाँ पे, उन्होंने अपना चरण का धूली लेके नारद जी को दे दिया। नारद जी बड़ा अचंभित हुए, उन्होंने बोला, अरे भाई, आप लोग तो बहुत बड़े प्रिय भगवान के भक्त हो, आप लोग अगर इस तरह का अपराध करोगे तो आप लोग को नरक मिल सकता है। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया कि उन्होंने बोला कि देखो, अगर इस तरह का कारनामा करके अगर हो सकता है कि हमें नरक ही मिले, लेकिन अगर इससे हमारे कृष्ण ठीक होंगे, अगर इनसे हमारे कृष्ण में सुधार होंगी, तो हमें कोई भी किसी भी तरह का दंड स्वीकार है। तो नारद मुनि को तब पता चला कि वो गोपी, इसलिए कृष्ण के पास टाइम्स में, कृष्ण के रासलीला में गोपी को, गोपियों का स्थान मिला है, क्योंकि शी इज़ द टॉप मोस्ट डिवोटी, दे आर द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो बेस इसलिए कहा जाता है माधुर्य रस वो। सो इन दैट वे मैं उसको बता रहा था, मतलब टॉपिक से थोड़ा डिवेट हुए थे। तो सिमिलरली द लॉर्ड ऑल्सो फील्स ट्रांससेंडेंटल प्लेजर बाय सबमिटिंग हिमसेल्फ टू द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवोटी। दिस वॉज एग्जाम्पलीफाइड बाय कृष्णा सरेंडर डाउन टू हिज मदर यशोदा। तो यहाँ पे माँ यशोदा के बंधन में भगवान कृष्ण प्रेम से बंध रहे हैं। पहले तो भगवान रस्सी छोटा कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब देख रहे हैं कि वो माता प्रयास करती जा रही है, तो उनका भाव देख के, उनका प्रेम देख के भगवान प्रेम के बंधन में बंधने को तैयार हो जाते हैं। तो कृष्णा इज द सुप्रीम bestower of all kinds of liberation to his devotees, but the benediction which was bestowed upon Mother Yashoda was never experienced even by the Lord Brahma or Lord Shiva or the goddess of fortune. This is the most important line throughout this chapter, कि ये सौभाग्य इवन ब्रह्मा के पास भी नहीं है, शिव जी के पास भी नहीं, और गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के पास भी नहीं है। जो मदर यशोदा के जो भाग्य में जो बेनेडिक्शन है, ये तीनों के भाग्य में नहीं है। स्वयं जो परम भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान अपने भक्त, भगवान मदर यशोदा के बंधन में बंध रहे हैं, माता यशोदा के बंधन में बंध रहे हैं। ना लॉर्ड शिवास तक बांध पाए, ना ब्रह्मा बांध पाए, और गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून तो खुद भगवान की सेविका है, इल्यूजरी है ना, सॉरी, खुद भगवान की सेविका है, लक्ष्मी देवी है ना, वो भी नहीं भगवान को बांध पाई। So the Supreme Personality of Godhead, who is known as the son of Yashoda and Nand Maharaj, is never so completely known as the yogis and speculators, but he is very easily available to his devotees. तो ये भी लाइन बहुत अच्छा है कि यहाँ पे दिखा जा रहा है कि who is known as the son of Yashoda and Nand Maharaj is never so completely known, is never so completely known to the yogis and speculators, but he is easily available to his devotees. तो डिवोटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। यहाँ पे जो एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, इसको बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से लेना, ठीक है। ये जो डिवोटी वर्ड है, ये बहुत बड़ा एक पोजीशन है, बहुत बड़ा ये कह सकते हो क्वालिफिकेशन है, डिवोटी, भक्त, ठीक है ना। अपने आप को भक्त कहना एक बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि आप कहीं जाओ, किसी भक्तों के संग में जाओ, भक्त आपको ग्लोरीज कर रहे हैं, आपका ग्लोरीज गा रहे हैं, बोल रहे हैं, अरे यार विकास प्रभु को देखो, अभिषेक प्रभु को देखो, दे आर वेरी प्योर डिवोटीज, हिमांशु प्रभु को देखो, दे आर प्योर डिवोटीज। हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें ये अहंकार नहीं लाना चाहिए कि वो लोग हमें बोल रहे हैं कि वी आर वेरी प्योर डिवोटीज। हमें इसे इस तरह से सोचना चाहिए, हमें इसे इस तरह से सोचना चाहिए कि भाई उनका ऐसा भाव है मेरे प्रति, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं, ठीक है ना। दैट शुड बी आवर मूड कि ओ भगवान प्लीज़, मैं प्योर डिवोटी नहीं हूँ, मैं बस आपका सेवा कर रहा हूँ, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। Nor is he appreciated as the supreme reservoir of all pleasure by the yogis and speculators. After binding her son, Mother Yashoda engaged herself in household affairs. At that time, bound up the modern water, Krishna could see the pair of trees, Yamala trees. Yamala नहीं, sorry, Arjuna trees. Yamala trees का शायद पता नहीं क्या है, जो भी। After binding her son, Mother Yashoda engaged herself in household affairs. At that time, bound up to the modern waters, Krishna could see the pair of trees before him, which were known as Arjuna trees. The great reservoir of praise. Lord Krishna thus thought to himself, Mother Yashoda first of all left without feeding me sufficient milk, and therefore I broke the pot of yogurt and disturbed the stock butter in charity to the monkeys. Now she has bound me up to the wooden mortar, so I shall do something more mischievous than before. तब कृष्णा सोचे कि यार अब तो बांध दिया, अब तो छोड़ेंगे नहीं, अब तो कुछ और उडंडित करके दिखाएंगे। And thus he thought of pulling down
डाउन द टू वेरी टॉल अर्जुना ट्रीज। तो अर्जुना ट्रीज का भी एक बहुत बड़ा इतिहास रह चुका है। पिछले जन्म में ये जो अर्जुना ट्रीज थे ये नल कुंवर और मणिग्रीवा नाम के देवता थे। तो बेसिकली ये कौन थे? कुबेर के पुत्र थे। कुबेर कौन है? जिसके पास संपत्ति वगैरह खूब है ना, कुबेर। तो बेसिकली उनके ये पुत्र थे नल कुबेर और मणिग्रीवा। पर फॉर्चुनेटली दे केम विद इन द विजन ऑफ द लॉर्ड। और देखिए उनका फॉर्च्यून कितना अच्छा है। उनका फॉर्च्यून कितना अच्छा है कि नल कुबेर और मणिग्रीव कहाँ खड़े थे? ब्रज में खड़े थे, वहाँ पे खड़े थे जहाँ पे भगवान उपस्थित थे, वहाँ पे खड़े थे। फॉर्चुनेटली दे केम विद इन द विजन ऑफ द लॉर्ड। इन देयर प्रीवियस लाइफ्स दे वेयर कर्स्ड बाय द ग्रेट सेज नारद। अब आप सोचोगे भाई नारद मुनि हु इज़ द प्योर डिवोटी ऑफ श्री कृष्ण, है ना, नारद मुनि जो भगवान के परम भक्त हैं, वो कैसे किसी को शराब दे सकते हैं? डिवोटीज तो कभी किसी को शराब देते नहीं हैं, है ना। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बट इसके पीछे का भी एक आप देख सकते हो कि अगर नारद मुनि ने, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इन देयर प्रीवियस लाइफ्स दे वर कस्ड बाय द ग्रेट सेज नारद इन ऑर्डर टू रिसीव द हाईएस्ट बेनेडिक्शन ऑफ सीइंग लॉर्ड कृष्ण। तो भगवान के भक्त अगर कुछ करवा भी बोलते हैं ना, तो उसके पीछे उनका इंटेंशन देखिए कि क्या है। नारद मुनि का इंटेंशन क्या था कि वो भगवान श्री कृष्ण को अपने आंखों से देख पाए, भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने से दर्शन कर पाए। दिस बेनिडिक्शन कर्स, सो ये अब कर्स नहीं कहलाएगा, ये बस ओनली कर्स नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा द बेनिडिक्शन कर्स। दिस बेनिडिक्शन कर्स was bestowed upon him because of their forgetfulness due to intoxication. This story will be narrated in the next chapter. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 9th chapter of Krishna. Mother Yashoda binds Lord Krishna. तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया प्रभु जी? यस प्रभु। आपको अभिषेक प्रभु? हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु। ठीक है, तो विकास प्रभु हम लोग कल 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? यस प्रभु। द डिलीवरेंस ऑफ नल कुबेरा एंड मणिग्रीवा। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से नल कुबेर और मणिग्रीव का भगवान उद्धार करता है, ठीक है ना? तो बेसिकली कल जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसको कल जो चैप्टर आप लोग पढ़े थे उसको कोशिश किया हमने और अच्छे से